हेलो फ्रेंड्स, जो तो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 चलो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक देखा है। चलो तो हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट y इज इक्वल टू लिखना है आपको। y इज इक्वल टू 1 प्लस sin स्क्वायर x होल पावर 3 सॉरी होल टू द पावर 2 into 1 plus cos square x bracket to the power 3. Okay, this is y. Now differentiate with respect to x. So write down here differentiate with respect to x. We get अगर मैं इसको differentiate कर लेता तो क्या मिल जाएगा मुझे? That is dy by dx. dy by dx is equal to this is a u into v. Multiplication है दोनों के बीच में. So this is u, this is v. Now you know the formula for derivative of u into v. d by dx of u into v is nothing but u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u. This is the formula. Now here what is value of u? u is nothing but 1 plus sin square x 1 plus sin square x whole power bracket to the power 2 into d by dx of derivative of इसका डेरिवेटिव लेना है 1 plus cos square x whole to the power 3 bracket to the power 3 plus second function as it is. Second means 1 plus cos square x to the power 3 into d by dx of derivative of first. Derivative of first means 1 plus sin square x bracket to the power 2. Okay, so this is u into v. Application of u into v. यहाँ पे यूज किया मैंने u upon v वाला रूल, वो वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया. सो हम देखेंगे अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है. Therefore dy by dx is equal to आगे लिख लेता हूं. चलो फिर dy by dx is equal to therefore dy by dx equal to first function as it is 1 plus sin square x 1 plus sin square x bracket to the power 2 differentiation of x raised to n का डिफरेंशिएशन. x raised to n का डिफरेंशिएशन है n into x raised to n minus 1. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें? इसको x to the power n फॉर्मूला n into x to the power n minus 1. ओके, तो इसका डेरिवेटिव लेना है. सो 3 नीचे आएगा. सो into 3 into 1 plus cos square x to the power 2. ये तो होगा इसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव होगा 1 plus cos square x to the power 2 into इसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ये ब्रैकेट का. ठीक है, into d by dx of किसका डिफरेंशिएशन करना है? 1 plus cos square x का डिफरेंशिएशन करना है. 1 plus cos square x का. ठीक है, नेक्स्ट दिस फंक्शन एज इट इज प्लस 1 plus cos square x 1 plus cos square x to the power 3. ओके, into डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. तो ये भी x raised to n है तो इसका आएगा into 2 1 plus sin square x 1 plus sin square x to the power 2 minus 1 तो आएगा 1 into derivative of into d by dx of 1 plus sin square x 1 plus sin square x. ठीक है, therefore dy by dx is equal to so कितना है 3 पहले लिखो 3 into 1 plus sin square x 1 plus sin square x to the power 2 into 1 plus cos square x to the power 2. Okay, into differentiation of this 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा. cos square x का कितना आएगा 2 cos x नीचे उतर जाएगा 2 into cos x and cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज minus sin x. so यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे minus sin x. ठीक है, प्लस 1 plus cos square x to the power 3 ये वाला 2 आगे लिख देना मैं यहाँ पे प्लस 2 1 plus sin square x 1 plus sin square x into derivative of इसका 1 का डेरिवेटिव 0 sin square x का डेरिवेटिव तो कितना आएगा 2 sin x x रेस्ट में का फार्मूला यूज करेंगे 2 sin x एंड sin x का डेरिवेटिव वो आएगा cos x. ओके राइट. सो ये वाला क्या आएगा? therefore dy by dx is equal to अब कॉमन देखेंगे यहाँ पे कॉमन कौन है 1 plus sin square x ये सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म है 1 plus sin square x यहाँ पे 1 सिंगल ब्रैकेट है यहाँ पे 2 ब्रैकेट है 1 सिंगल ब्रैकेट कॉमन आएगा. तो मैं
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाहर, ठीक है। दूसरा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर, सो जो छोटा ब्रैकेट है वो कॉमन आएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 पावर, ओके। और कुछ कॉमन आएगा, और कॉमन कौन है, और कॉमन 2 cos x into sin x, 2 cos x into sin x, वो भी गेट ऑफ 2 sin x into cos x, cos x into sin x means sin x cos x, ठीक है। इसका माइनस साइन इसको दे दो, ऐसा है, इसका माइनस साइन इसको दे दो आप, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा ये माइनस 3, दो ब्रैकेट थे इसके, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का ओनली सिंगल ब्रैकेट हमने कॉमन निकाला है, तो एक ब्रैकेट एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखना है आपको यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 एज इट इज बाहर है, कुछ भी नहीं लिखना, ये भी एज इट इज बाहर है, यहाँ का प्लस आएगा, प्लस 2 है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 3, कॉमन कितना निकाला था 2, तो एक ब्रैकेट सिंगल बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। चलो तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा बेटा dy by dx is equal to so dy by dx is equal to 1 plus sin square x लिखना है आपको, 1 plus sin square x, 1 plus cos square x, 1 plus cos square x to the power 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, 2 sin theta into cos theta, इसका फॉर्मूला है sin 2 theta, सो यहाँ पे कितना आएगा sin 2x, ओके। इसका मल्टीप्लिकेशन करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको क्या मिलेगा -3 into 1 -3 into sin square x, -3 sin square x, चलो प्लस 2 into 1 तो आएगा +2, देन 2 into cos square तो 2 cos square x, ओके, ब्रैकेट क्लोज, तो कितना आएगा, therefore dy by dx is equal to 1 plus sin square x whole bracket, sorry only bracket, into 1 plus cos square x to the power 2 into sin 2x, ठीक है। यहाँ पे लिखना है -3 plus 2 तो -1 आएगा, कितना आएगा -1, यहाँ पे लिखना है -3, ये sin square x as it is, प्लस 2 cos स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का आइडेंटिटी देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो ओनली आपको cos स्क्वायर थीटा लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये sin स्क्वायर थीटा 1 में से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, सो 2 into, मैं इसको कैसे लिखता, इसको लिखने वाला हूं मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे x है तो x लिखना है, ओके। सो और एक नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, चलो तो आगे सॉल्व करते हैं एक और स्टेप, सो dy by dx is equal to 1 plus sin square x 1 plus cos square x to the power 2 into sin 2x as it is into, तो ये कितना आएगा देखो, -2 -3 sin square x plus 2 into 1 plus 2 into -2 sin square x आएगा, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, और एक लास्ट स्टेप, इस लास्ट स्टेप हो जाने के बाद अपना खत्म हो जाता है इसका आंसर, ठीक, वो आएगा फाइनल आंसर। अब जो लास्ट स्टेप आएगा दैट इज द फाइनल आंसर। चलो हम लास्ट स्टेप देखेंगे क्या आता है, ओके। dy by dx is equal to next one, dy by dx is equal to this three bracket as it is, 1 plus sin square x, 1 plus sin square x into 1 plus cos square x to the power 3 into sin 2x, ओके। इसका करो तो कितना आएगा, ये देखो +2 - 2 गेट कैंसिल,
माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो आएगा माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू नहीं मल्टीप्लाई उसको भी, ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई आया साथ में, तो दिस इज दी फाइनल आंसर। ओके, इस टाइप आपका इक्वेशन आएगा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो ये वाला आपका फाइनल आंसर होगा। चलो तो हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज y is equal to under root of cos x plus under root of cos of root x। ओके, ये वाला सिक्स्थ क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता तो मुझे क्या मिलेगा, therefore dy by dx is equal to प्लस के बीच में मींस दोनों का डिफरेंशिएशन करना है आपको, dy by dx of root cos x plus dy by dx of root of cos root x। ओके, सो रूट का डिफरेंशिएशन तो सब लोग जानते हैं, रूट का डिफरेंशिएशन आ रहा है 1/2 रूट 2 1/2 रूट 2 इनटू जो रूट में उसका भी तो डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin x, मैंने लिखा नहीं, आप डायरेक्टली कर लिया है cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस यहाँ पे प्लस इसका भी तो डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पे लिख देगा मैं नीचे प्लस 1/2 रूट cos root x इनटू इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, रूट में जो है cos root x उसका भी डिफरेंशिएशन, cos root x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin root x एंड माइनस sin root x इनटू root x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर root x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, that is 1/2 root x, 1/2 root x। तो आगे क्या बचेगा आपका, आगे आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है, थोड़ा सा काम करना चाहेंगे आपको। सिंपल सा काम करना है, dy by dx is equal to, therefore dy by dx equal to क्या आएगा ये, dy by dx is equal to 1/2 root cos x minus sin x into 1, तो कितना आएगा माइनस sin x as it is, माइनस sin x upon 2 root cos x, 2 root cos x, ओके, root cos x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस sin root x अपॉन 2 cos root x, 2 root of cos root x, ठीक है, इनटू इसका देखो 1/2 root x है, तो ये भी आएगा इससे मल्टीप्लाई बाय 2 root x, सो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली, therefore dy by dx is equal to माइनस ऑफ sin x अपॉन 2 root cos x माइनस ऑफ sin root x upon 2 to the 4 root x as it is into cos of root x, so this is the final answer, ये हुआ आपका फाइनल आंसर, dy by dx is equal to this। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा मेथड है आपको सॉल्व करने के लिए, सेपरेट डिवीजन सेपरेट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, चलो तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट log of sec 3x plus tan 3x, log of sec 3x plus tan 3x, so इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, so y is equal to log of sec 3x plus tan 3x, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज dy by dx is equal to log का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं, log of anything is equal to 1 upon that thing, so 1 upon क्या आएगा, 1 upon sec 3x
plus tan 3x, this is the differentiation of log into, मुझे डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है sec 3x plus tan 3x, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है मुझे, sec 3x plus tan 3x का भी तो डिफरेंशिएशन करना है। सो वो वाला डिफरेंशिएशन कितना आएगा, चलो तो देखेंगे उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, that is dy by dx is equal to, therefore dy by dx is equal to, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 upon 3x plus tan x, ये तो as it is आएगा 1 upon sec 3x plus tan 3x as it is into, इसका डिफरेंशिएशन बोले तो कितना आएगा, sec का sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, तो ये वाला क्या आएगा, sec 3x into tan 3x, राइट ना, sec 3x into tan 3x, एंड 3x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 3x का डिफरेंशिएशन आएगा 3, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायरेक्टली कहाँ पे 3 into sec 3x into tan 3x प्लस तो मुझे इसी ब्रैकेट में करना है वो, प्लस tan 3x का डेरिवेटिव क्या है, tan का डेरिवेटिव रहता है sec square x, सो sec square 3x into 3x का डेरिवेटिव 3, सो ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आप ठीक से, तो आपको पता चलेगा dy by dx is equal to, तो वाला जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई 1 को, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन, और उसके बाद sec x भी कॉमन, एक sec x भी कॉमन, sec 3x भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 3 sec x तो बाहर है, ओनली tan x बचा है यहाँ पे, tan 3x प्लस इसमें से 3 तो बाहर है, sec 3x में से एक वाला ब्रैकेट क्या है, बाहर है, तो बचेगा अंदर sec 3x। ओके, अपॉन में कितना लिखना है, sec 3x प्लस tan 3x, सो ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dy by dx इज इक्वल टू 3 sec 3x। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर, इतना सा कुछ करना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल काम करना है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल सा है, सिंपल एग्जांपल है, सिंपली करना है आपको, बोलिए कुछ भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं उसमें। नेक्स्ट वन, question number 8. So the question number 8 is 8 was question difficult now, e to the power 2x minus e to the power 2x minus e to the power minus 2x upon e to the power 2x plus e to the power minus 2x। ठीक है, दिस इज द 8th क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो y इज इक्वल टू लिखना है, y इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखा, e to the power 2x as it is minus of e to the power minus 2x, तो e to the power minus 2x को हम लिखेंगे 1 upon e to the power 2x, 1 upon e to the power 2x, तो आएगा 1 upon e to the power 2x upon नीचे क्या आएगा, इसको भी वैसे लिखना है, e to the power 2x plus 1 upon e to the power 2x। ठीक है, e to the power 2x। सो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे उसको, तो क्या मिलेगा मुझे, therefore y is equal to e to the power 2x into e to the power 2x, बेस से एडिशन हो जाएगा e to the power 4x minus 1। ओके, डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाय a वाला e to the power 2x as it is, and whole डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइडेड बाय e to the power 2x into e to the power 2x e to the power 4x plus 1 नीचे upon e to the power 2x as it is। ओके, तो इन दोनों में से कैंसिल कौन हो जाएगा, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये वाला e to the power 2x, ये वाला e to the power 2x गेट कैंसिल, ये वाला कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, सो लिखना है आपको आगे। सो नेक्स्ट वन इज dy by dx is equal to dy by dx is equal to
dy by dx is equal to ये आएगा e to the power 4x minus 1 e to the power 4x minus 1 upon e to the power 4x plus 1. ओके, अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, अब मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ. dy by dx नहीं, ये y इज इक्वल आएगा बेटा, y इज इक्वल, अभी तक डेरिवेटिव लिया ही नहीं. अब डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता तो क्या मिलेगा मुझे, dy by dx u into v बराबर, सो u into v का रूल मालूम है आप सब लोगों को, v upon v into du by dx minus u into dv by dx upon p square, right now. So this is the rule, apply this rule here. So we get e to the power 4x plus 1 as it is into डेरिवेटिव मुझे इसका लेना है, so d by dx of e to the power 4x minus 1, इसका डेरिवेटिव minus of numerator as it is, now e to the power 4x minus 1 as it is into d by dx of e to the power 4x plus 1 upon में क्या आएगा, e to the power 4x plus 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो मुझे क्या मिलेगा आगे, therefore dy by dx is equal to e to the power 4x plus 1, वो वाला तो वैसे ही रहेगा, e to the power 4x plus 1 as it is into e to the power 4x minus 1 उसका डेरिवेटिव as it is e to the power 4x का e to the power 4x into ऊपर का 4x उसका भी तो डिफरेंशिएशन, सो 4x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा into 4 minus e to the power 4x minus 1 as it is e to the power 4x plus 1 का डेरिवेटिव, that is e to the power 4x into 4x का डिफरेंशिएशन 4, राइट, डिवाइडेड बाय इसका कितना आएगा e to the power 4x plus 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, कॉमन पड़े 4 into e to the power 4x कॉमन, सो dy by dx is equal to 4 into e to the power 4x कॉमन, ये वाला कॉमन दोनों तरफ है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसलिए कॉमन, अंदर बचेगा मेरा e to the power 4x plus 1 minus of e to the power 4x minus minus plus 1, ओके, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आएगा e to the power 4x plus 1 होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, सो आपका आंसर क्या आएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, सो रिमेनिंग बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में 2 बचा है, देखो ठीक से देखोगे आप तो आपको मिलेगा ब्रैकेट में 2, सो यहाँ पे क्या लिखना है, so dy by dx is equal to 1 plus 1 2 into 4 तो आएगा 8 e to the power 4x upon 1 e to the power 4x plus 1 whole square, so ये आएगा आपका फाइनल आंसर, तो इसका आंसर आएगा इतना सारा आपको करना है. ओके, दिस इज द 8th क्वेश्चन. देन द क्वेश्चन नंबर 9 इज लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 9 इज what of log x by 2 minus log of cot x by 2. ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन है, तो इसको y एज्यूम करिए आप, सो डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सो ये वाला y है आपका, ठीक है, 9th क्वेश्चन में जो है y है, सो dy by dx इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, सो dy by dx ऑफ cot को भी लगाना पड़ेगा log x अपॉन 2 माइनस dy by dx ऑफ log ऑफ cot x अपॉन 2, ठीक है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन लेना है मुझे, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, cot का डिफरेंशिएशन तो आप सब लोग जानते हैं, cot का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, cot का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस cos स्क्वायर x, सो चलो तो माइनस cos स्क्वायर x मींस कौन है यहाँ पे, तो dy by dx is equal to माइनस cos स्क्वायर x, सो माइनस cos स्क्वायर x मींस कौन आएगा, माइनस ऑफ
कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब है log x अपॉन 2, सो यहाँ पे लिखना है log x अपॉन 2 इंटू इसका भी तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन 2 का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे, माइनस log का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज, log का डेरिवेटिव कितना है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x मींस 1 अपॉन cot x अपॉन 2 इंटू इसका भी तो डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा इंटू d बाई डी एक्स ऑफ जो भी x है उसका डिफरेंशिएशन मींस cot x अपॉन 2, इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे, सो ये क्या आएगा which is equal to माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ log x अपॉन 2 इंटू 1/2 कॉमन यहाँ बाहर निकालो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ओके log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस ऑफ ये रेसिप्रोकल है तो ये ऊपर जाएगा 2 अपॉन cot x हो जाएगा इसका, ठीक यहाँ का 1 अपॉन 2 कॉमन है, कॉमन मींस कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर एंड cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ओके सो कितना आएगा 1 into 1 1 log x into cosec square x मींस ये कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर log x अपॉन 2 एंड इंटू कितना आएगा इंटू 1 अपॉन 2x, ओके इंटू 1 अपॉन 2x माइनस ऑफ यहाँ पे लिख लेना मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे तो 2 गेट कैंसिल, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस माइनस तो प्लस होगा कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x अपॉन cot x, दिस इज द फाइनल आंसर dy by dx इज इक्वल टू दिस, मेरे पास जगह नहीं तो इसलिए मैंने एक वाला टर्म नीचे लिख दिया, सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे, ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों, तो आपके स्टडी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, चलो बाय।